Hello dear students, how are you all? As we all know that we are doing chapter 1 class ninth, matter in our surroundings, and we have done up to the different physical states of matter. Now we have to start our next topic, but before that I am asking two questions. Questions are: question number 1, what is the force between particles of solid? What is the force between particles of solid, that is minimum, maximum or intermediate? Second one is, do solids fluid? Second question is, do or are solid fluids? क्या solid fluids हैं? These are the two questions. And now we are going to start our next topic. States of matter are interchangeable. It means that we can change the states of matter from one state to another state. It means that solid to liquid and liquid to gas. There are three main states of matter as we have discussed. So we can change them from solid to liquid and liquid to gas, or solid to gas, gas to solid, gas to liquid and liquid to solid. These are interchangeable. By various processes or by various methods we can change them. So there are mainly two methods to change the states of matter. First one is by changing temperature, second one is by changing pressure. So students, we can change states of matter, and when one state of matter change into another state of matter, then that process is known something. That process is named something. That names are given there. Here we are going to start first by changing the temperature. What is the effect on change in temperature? On increasing heat, particles gain kinetic energy. It means that when we heat any particles into any beaker, then the particles of matter will gain energy and start vibrating with greater energy, and they will start or move here to here, here, up, down, left, right, all in all directions. Do Due to increased kinetic energy, because they gain energy, and that energy provide them kinetic energy because they move or vibrate with greater energy. Hence the particles overcome the force of attraction and a new state of matter obtained. And we all know very well states of matter depending upon the nature or the force of attraction between particles. So liquid particles have more force of attraction, gas particles have less force of attraction, and solid particles have very much force of attraction. They are closely packed. It means that the energy which we give, that will use to change the force of attraction, and due to change in force of attraction or overcoming force of attraction, we can change solid to liquid, and liquid to gas. Okay students, so there are some naming, or the name of the process is given. First one is sublimation. Sublimation, you know very well, we have done in earlier videos also. Solid to gas, when a substance directly converted from solid to gas, then that process is known as sublimation. Solid to liquid, when a substance changes from solid state to liquid state, it is known as melting. When a substance changes from liquid to gas, it is known as vaporization. What is known as vaporization? Sometimes it is known as evaporation also. Vaporization at melting point होगा, at melting point, while at any temperature below melting point is known as evaporation. Okay students, प्रोसेस तो लिक्विड से गैस में चेंज होने की है. अगर मेल्टिंग पॉइंट पे हो, इट मीन्स दैट वी आर हीटिंग एनी लिक्विड at its up to its melting point, then that change is known as vaporization. And if any substance evaporate itself below a melting point, it means it's one example is like we are putting some water in a bowl in our room or in sunlight.
So after some time or after some days, 1 or 2 hours or 1 or 2 days, we find that some amount of water has evaporated from there. Then that process is known as evaporation, because we did not boil the water while the liquid had changed into gases or vapors, and that vapors mix up in the airs. Okay, students. So there are two processes, vaporization and evaporation. Vaporization at melting point, evaporation below melting point. Okay, students. Next one is condensation. Now we are going from gas to liquid. Gas to liquid, the process of changing the state from gas state to liquid state is known as condensation. What is name is that? Condensation. Okay, students. And now from liquid to solid state change from liquid state to solid state is known as freezing. Okay, students. And as we know very well, solid to gas is directly conversion is known as sublimation. In the similar way, gas to solid without coming into liquid state, when any particle or any state of matter directly went or goes or attain gas solid state from gas state, then that is known as reverse sublimation. What is known as, students? Reverse sublimation. Now we are going to at next slide. The same process is given there, same name is given there, only the reverse sublimation is also known as deposition. Okay, students, we can say that reverse sublimation also known as deposition. Okay, students, here it is given that when, as we know, we are increasing or decreasing the temperature, and when we increase the temperature, it is shown by red arrow. Heat absorption. Heat absorb means these particles will get heat and get converted into gas. And when heat is released means we are getting out heat from this. It is shown with purple line. Okay, students. Similar for there, and there. All the processes are same. Here is only representation. There is only representation. Okay, students. You know, कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके मेरे से प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. और जो PDF है इस चैप्टर की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. वो आपकी ईजीनेस के लिए है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए. फर्दर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. वी आर गोइंग एट नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज ऑल्सो getting hotter, the similar process. Hotter means we are giving heat solid, then it will melt, and when we are giving heat to liquid it will evaporate. And vaporization also we have already discussed this. Now when we are getting heat from this state to gas to liquid to solid, then the change of the state will occur in this manner. It means that when a body get cooler or colder, then it will condensate, gas will condensate to form liquid, and when liquid is also getting colder, then liquid also get converted into solid, and this process is known as freezing. Okay, students. Now next, by changing pressure, as we told that in before 2 slides, we can change state of matter by changing temperature and by changing pressure. So we have discussed by changing temperature. Now we are going to discuss by changing pressure. Okay, students. By changing pressure, so by increasing pressure, when we are increasing pressure on any particle or any state or any matter, then state changes from gas to liquid to solid. It means that firstly gas to liquid, it will convert from gas to liquid, and when we are applying more pressure, then liquid also get converted into solid. Okay, students.
due to increase in interatomic force of attraction, because we are applying pressure. Let's taking gas particles into a beaker, and when we are applying pressure or force from upside, then these particles come closer to each other, and when particles come closer to each other, then states of matter change, because when particles come closer to each other, then the interatomic force of attraction will increase and interatomic space will decrease. इंटरएटमिक स्पेस तो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इंटरएटमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट इंक्रीज इन इंटरएटमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज इन इंटरएटमिक स्पेस. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय डिक्रीजिंग, ये तो था बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, दिस वन इज फॉर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. इंक्रीज इन प्रेशर से क्या था, गैस से लिक्विड फिर सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, बट व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर, then state of matter change from solid to liquid, and if it is in liquid, then liquid to gas. Okay students, so by decreasing pressure, solid to liquid and liquid to gas due to decrease in interatomic force of attraction. उसका उल्टा है students, vice versa. Okay students, और increase in interatomic space, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर तो होगा नहीं. पहले प्रेशर था तो पार्टिकल पास थे जब तक प्रेशर था, प्रेशर हट गया तो पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल्स जब प्रेशर बिल्कुल हट गया तो पार्टिकल्स बहुत दूर हो जाएंगे. बहुत दूर होने से उनके बीच में स्पेस तो इंक्रीज हो गया और फोर्स डिक्रीज हो गया. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. It is most important question and definitely it repeat itself. It is the repeated question है students. ये जो आपके पीरियडिक टेस्ट होते हैं, सेशनल बोल लेते हो आप उनको, पीरियडिक टेस्ट भी बोलते हो, जो भी स्टूडेंट्स जिस भी लैंग्वेज में उसको बोलता है, जो आपके टेस्ट होते हैं क्लास टेस्ट, उनमें भी आता है स्टूडेंट्स, और फाइनल एग्जाम में भी आता है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो चाहे वो एनुअल हो. हर एक एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स, एक कोड में जरूर मिलेगा ये एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, किसी न किसी कोड में जरूर मिलेगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ some main definitions, as we have discussed in previous also. These definitions have already discussed, but we are only again I'm telling these, and these are written and you can also check proper definition. Okay students, यहाँ से proper definition आप लोग अपनी लिख भी सकते हो इनकी. तो सबसे पहला जो definition आता हुआ था मेल्टिंग का. किसका था स्टूडेंट्स? मेल्टिंग का. मेल्ट का तो पता ही आप लोगों को, जैसे अगर हम आइस को रख देते हैं, when we are putting ice cube or any ice piece and at any place, then it will melt and converted into liquid water. तो थोड़ी देर में अपने आप ही चेंज हो जाता है. तो मेल्टिंग यही प्रोसेस होगी. सॉलिड था पहले, आइस क्या था, सॉलिड स्टेट में था, और वाटर की स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया. तो सॉलिड से लिक्विड. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स जो थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़्यादा बड़ी डेफिनेशंस याद करने में प्रॉब्लम होती है, कमज़ोर तो कोई नहीं होता स्टूडेंट्स, सिर्फ उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है. कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े कम याद कर पाते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स सिर्फ यहीं तक डेफिनेशन सफिशिएंट है, ओनली यहाँ तक. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट. फिर भी बाकी अगर आप लोग पूरा याद कर सकते हो तो द बेस्ट है, तो ये पूरा याद कीजिएगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन. देखो स्टूडेंट्स, एक डिफ्यूजन आया था, ध्यान रखना, एक डिफ्यूजन आया था, DIFFUSION. डिफ्यूजन था, क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ वन मैटर इनटू अनदर मैटर. एक मैटर या फिर एक पार्टिकल का एक दूसरे पार्टिकल में मिल जाना. जैसे वाटर के अंदर इंक था, वाटर के अंदर इंक हम लोगों ने मिक्स कर दिया था, तो वो क्या कहलाता हमारे पास, डिफ्यूजन. क्या कहलाता, डिफ्यूजन. ये है स्टूडेंट्स फ्यूजन. फ्यूजन क्या रहेगा, फ्यूजन इज द सेम changing of solid state of matter into liquid state of matter. Okay students, now second point is boiling. Boiling is the changing liquid state of matter into gaseous state of matter. Similar way, it is also known as evaporation. वेपोराइजेशन भी बोलते हैं इसको. ओके स्टूडेंट्स, वही इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन वही दो प्रोसेस हैं. इवेपोरेशन है तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट है, वेपोराइजेशन है तो एट मेल्टिंग पॉइंट है. तो या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट. इवेपोरेशन है
इवेपोरेशन है तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, और वेपोराइजेशन है तो एट बॉइलिंग पॉइंट है, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको वेपोराइजेशन बोलेंगे, ना कि इवेपोरेशन. ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज वेपोराइजेशन. थर्ड वन इज कंडेंसेशन. Condensation, as we have discussed students, when gaseous state of matter changing into liquid state of matter, it is known as condensation. कंडेंस करना स्टूडेंट्स, कंडेंस होता है किसी भी गैस को प्रेशर करके या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके हम लोग उसका वाटर या फिर लिक्विड स्टेट ले आए. ओके स्टूडेंट्स, तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आना, वो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, फ्रीजिंग और सोलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग और सोलिडिफिकेशन वही सिमिलर हम डिस्कस तो कर चुके हैं स्टूडेंट्स. चेंजिंग लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट. जैसे हम लोग वाटर को रख देते हैं किसी बाउल के अंदर हम लोगों ने वाटर रखा था फ्रीजर में. तो फ्रीजर में रखने के बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे 2 आवर्स 3 आवर्स, वो डिपेंड करता है आपके फ्रीजर की कैपेबिलिटी के ऊपर कि कितनी देर में उसको ठंडा कर देता है. तो पहले ठंडा होगा, कोल्ड हो जाएगा, उसके बाद में उसका आइस बन जाएगा. क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? आइस. तो क्या हो गया, पहले लिक्विड था, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ चुका है, लिक्विड स्टेट से आइस सॉलिड स्टेट में आ चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग या फिर सोलिडिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. कोई भी स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, आप बेझिझक कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, नो प्रॉब्लम. फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट. देखो मेल्टिंग पॉइंट, अभी हम लोगों ने मेल्टिंग पढ़ा था क्या? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में. आप लोग सिर्फ अपने छोटे से दिमाग में रखने के लिए सिर्फ सॉलिड स्टेट से लिक्विड, सिर्फ ये भी याद रख सकते हो, सॉलिड टू लिक्विड. तो सॉलिड टू लिक्विड जब भी कोई चेंज होता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर, इट मीन्स दैट जैसे वाटर है, वाटर उसको अगर आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा. रूम के अंदर रख देंगे तो मेल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट्स? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो वो क्या कहलाएगा? वही बात है स्टूडेंट, जिसको यहाँ तक याद होता है तो यहाँ तक याद कीजिएगा, आगे वाला छोड़ देना. मैक्सिमम कोशिश करो पूरा याद करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है डिस्कस तो यहाँ तक भी आप याद कर सकते हो, आपका मार्क्स मिल जाएंगे फिर भी आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, हर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% तक के. तो स्टूडेंट्स कोशिश करो आप अच्छे से करो, और आगे पूरी याद कर लोगे तो और भी बेटर है स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरी याद करोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ तक में भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत आपका डिडक्ट हो सकता है मार्क्स. तो 6 पॉइंट आ गया बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलर वे व्हेन वाटर जो होता है, वाटर को जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से क्या होता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, या फिर उसकी क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है. तो स्टीम बन जाना, वो स्टीम क्या है? गैसियस स्टेट, वाटर क्या था? लिक्विड स्टेट. तो एट दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो सिमिलर वे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके स्टूडेंट्स. 7th वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखिए स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट है ना, कोई भी एक हीट होती है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. लेटेंट हीट क्या होती है? जब भी हम किसी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज करने के लिए, उसके 1 किलोग्राम फिक्स अमाउंट को चेंज करने के लिए जो भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब लेटेंट हीट तो हमारी मेल्ट भी करते हैं, हम बॉयल भी करते हैं, तो दोनों की हो सकती है. मेल्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? फ्यूजन बोलते थे, और बॉयल करते थे उसको वेपोराइजेशन बोलते थे. तो यहाँ से हमारे पास 2 डेफिनेशंस निकल के आती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना. तो वो क्या क्या डेफिनेशन आती हैं देखिए. फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तभी तो उसकी स्टेट चेंज होगी ना, या फिर उसको ठंडा कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और हमें तो हीट से डिस्कस करना है तो हम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, या फिर हीट एनर्जी का यूज़ करेंगे. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. व्हेन 1 किलोग्राम solid get converted into liquid, and as much heat required, that amount is known as latent heat of fusion. Okay dear students,
Eighth point is latent heat of vaporization. Vaporization, as we have discussed, liquid state to gaseous state. So in the similar way, the amount of heat, latent heat, we require latent heat. It means that amount of heat. The amount of heat required to change 1 kilogram of liquid into vapors at its boiling point. Boiling point जरूरी है भाई, क्योंकि boil ही तो कर रहे हैं हम उसको. Liquid into vapor at its boiling point. वही अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड डायरेक्टली. दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन बोलते हैं. तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाना, उसको रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. सो सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा वो पार्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन. एंड लेटेंट हीट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, लेकिन फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था. नाउ लेटेंट हीट क्या रहेगा, इट इज द हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये स्टेट को चेंज होने के लिए दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट. और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, लेटेंट हीट, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जनरल क्वेश्चन. लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर सेम रहेगा. जैसे सॉलिड से लिक्विड, अगर हम बात करते हैं आइस की, आइस अगर मेल्ट हुआ था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ था सारे का सारा, और जब वाटर था बॉयल होकर के गैस बना था तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हुआ था सारे का सारा. तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था जब तक वो पूरा का पूरा सॉलिड से लिक्विड यानी कि सारे का सारा आइस जब तक वाटर नहीं बन चुका था. और इन द सिमिलर वे जब तक सारे का सारा वाटर स्टीम नहीं बन चुका था तब तक कोई भी हीट के उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आता. टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है स्टूडेंट्स बाद में. वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने के लिए दी जाती है हीट. और उस स्टेट को चेंज क्यों की जाती है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उस इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट यूज की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, डू गॉट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट, इस टॉपिक को हम स्टूडेंट्स अलग से एक वीडियो में करेंगे. इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक अलग से टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स, लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी आज की वीडियो कैसी लगी. और जो क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट्स उनको भी आंसर करना कमेंट बॉक्स में, कोशिश करो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो. और फिर भी जो आपके डाउट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्लियर किए जाएंगे. स्टूडेंट्स जो इसके नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है स्टूडेंट्स. और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी को तो डेफिनेटली किसी न किसी को तो बेनिफिट होगा. जब आपको हो रहा है तो और किसी को भी हो जाएगा. तो बेनिफिट है स्टूडेंट्स, ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है. कौन सा इसका कोई चार्ज लग रहा है, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोई चार्ज थोड़े ना लगता है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे. फिर मिलते हैं.